Hello everyone, welcome to you all. I am Suman Kumari from BHM first year. Today I am here to present my presentation on gynecological cancer. So let's start a small journey with me. The content that I have included in my presentation are definition, types, symptoms, diagnosis, treatment and prevention. What is gynecological cancer? Cancer is a very serious disease in which a cell grows inside the body and forms a lump that is known as cancer. And a cancer that forms inside the reproductive part of a woman that is known as gynecological cancer. It forms in uterine, fallopian tube, ovary, vaginal, cervical, valves that all are shown in picture. You can see clearly in the picture. Types of gynecological cancer. First, cervical cancer. Cervical cancer is a type of cancer that occurs in the cell of the cervix, the lower part of the uterus that connects the vagina. Cervical cancer जो होता है वो यूट्रस के लास्ट एंड पे होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यूट्रस के लास्ट एंड पे जो वेजाइना को कनेक्ट करता है. And ovarian cancer, a cancer that begins in the female organ that produce eggs. जहाँ से एग रिलीज होता है, ओवरी जहाँ से एग रिलीज होता है, ये कैंसर वहाँ पे फॉर्म होता है. ओवरियन कैंसर often goes undetected until it has spread within the pelvis and stomach. At this late stage, ovarian cancer is more difficult to treat and can be fatal. ओवरियन कैंसर जो होता है उसको ईजिली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से ये स्टोमक एरिया पे, पेल्विस एरिया पे ज़्यादातर फैल जाता है, जिसके और लास्ट एंड पे, लास्ट स्टेज पे पता चलने की वजह से इसका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ईजी नहीं होता है. अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाली, वुमेन्स में सबसे ज़्यादा फैलने वाली प्रॉब्लम्स ओवरियन कैंसर और सर्विकल कैंसर है. Uterine cancer. Most uterine cancer begins in the layer of cells that form the lining called endometrium of the uterus. Risk factor includes begin overweight and starting periods at an early age. यूटेरिन कैंसर जो होता है वो यूटेरस के लाइनिंग पे फॉर्म होता है, जिसको एंडोमेट्रियन बोलते हैं. इसका रिस्क फैक्टर ये है कि इसमें ओवरवेट हो जाता है, जो वुमेन होती है उसका ओवरवेट हो जाता है, और पीरियड का मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होता है, जिससे कि पीरियड टाइम पे नहीं आता है, या तो जल्दी आ जाएगा या फिर लेट आता है. Next, vaginal cancer. Cancer that forms in the tissues of the vagina, that is known as birth canal. The vagina leads from the cervix, the opening of the uterus, to the outside of the body. The most common type of vaginal cancer is squamous cell carcinoma, which starts in the thin flat cells lining the vagina. Vaginal cancer, you can see vaginal cancer forms at the end of uterus and that join the cervix. Cervix and uterus के एंड पे और सर्विक जो कनेक्ट करता है उस एरिया पे वेजिनल कैंसर होता है. बर्थ कैनाल भी इसको बोलते हैं. और जो कैंसर यहाँ पे जिस सेल की वजह से होता है उस सेल को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं. Vulvar cancer, a type of cancer that occurs on the outer surface area of female genital. Vulvar cancer is the most commonly diagnosed in older women. Risks include exposure to human papilloma virus and smoking. An early diagnosis reduces the likelihood that extensive treatment will be required. ये जो कैंसर होता है वल्वर कैंसर वेजिना के एंड पॉइंट, मतलब बोल सकते हैं वेजिना के एंड पॉइंट पे होता है और फीमेल जेनिटल एरिया पे. ये ज़्यादातर ओल्डर वुमेन में होता है. रिस्क फैक्टर इसका ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और स्मोकिंग के वजह से होता है. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को, जैसे कोई भी वायरस इन्फेक्शन जो होता है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इन्फेक्शन जो होता है यूट्रस में, उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं. फैलोपियन ट्यूब.
Fallopian tube cancer sometimes begins at the end of fallopian tube near the ovary and spreads to the ovary. Fallopian tube cancer is similar to the ovarian epithelial cancer as it is stated and treated the same way. Fallopian tube, ओवरी जहाँ से एग रिलीज होता है उसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब होता है, एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में एक जो जाता है उस एरिया पे कैंसर होता है. कैंसर होने की वजह से जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो फट जाने का चांस ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ गायनोकोलॉजिकल कैंसर. गायनोकोलॉजिकल कैंसर के सिम्टम्स, इसमें इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एबनॉर्मल वेजिनल ब्लीडिंग होती है, देन आफ्टर अनएक्सप्लेन्ड ओवरवेट अचानक से बढ़ जाता है, वेजिनल डिस्चार्ज कलर विथ ब्लड, वेजिनल जो डिस्चार्ज होता है उसका कलर चेंज होता है. वेजिनल डिस्चार्ज वाइट कलर का होता है लेकिन उसके बाद जब ये प्रॉब्लम कैंसर का प्रॉब्लम होता है तो उसका कलर चेंज होता है ब्लड के कलर में. पेल्विक पेन और प्रेशर, पेल्विक पेन और प्रेशर ज़्यादातर बना रहता है. एबनॉर्मल लम्प्स और बम्प्स अराउंड द वल्वा, ब्लोटिंग अराउंड द लोअर एब्डोमेन, बैक पेन, रेगुलर बैक पेन, अनयूजुअल और एक्सट्रीम पेन और क्रैम्पिंग इन द लोअर एब्डोमेन. इसके रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग करना, एक्सेस अल्कोहल लेना, एक्सपोजर टू रेडिएशन सच एज थ्रू प्रीवियस कैंसर ट्रीटमेंट, एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन सच एज हैवी मेटल्स, बीइंग ओवरवेट और ऑब्सेस. डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले गायनोलॉजिस्ट से हमें विजिट करना चाहिए, गायनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जिससे हम अपने गायनोकोलॉजिकल कैंसर को ट्रीट कर सकें. फिजिशियन जब भी हम फिजिशियन से मीट करेंगे तो वो हमें ये सर्विक, यूटेरस, ओवरीज, वेजाइना और वेल्वा जितने भी कैंसर होते हैं रिप्रोडक्टिव एरिया पे, उसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले गायनोकोलॉजिस्ट एडवाइस करता है एमआरआई कराने के लिए, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी, बायोप्सी. एमआरआई में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो भी वेजिनल प्रॉब्लम होता है या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रॉब्लम होता है उससे एमआरआई से स्कैन कर सकते हैं प्रॉपरली. सीटी स्कैन करके अल्ट्रासाउंड, उसको लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है एक थिन एब्डोमेन पे थिन कट लगाने के बाद एक ट्यूब इनहेल किया जाता है जिसमें कैमरा लगा होता है जिससे डॉक्टर अच्छे तरीके से अंदर के पार्ट में जिस भी पार्ट में कैंसर है उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट. बायोप्सी में स्मॉल टिश्यू को ले करके उसके बाद उसको लैब में टेस्ट किया जाता है कि पर्सन को किस टाइप का कैंसर है. ट्रीटमेंट ऑफ गायनोकोलॉजिकल कैंसर, केमोथेरेपी में मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं. इम्यूनोथेरेपी में जो जिस भी फीमेल को कैंसर हुआ है उसको फलाहार, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और विटामिन रिच फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. हार्मोन थेरेपी, देन आफ्टर सर्जिकल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डिबल्किंग सर्जरी की जाती है. लिम्फ नोड रिमूवल, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी. डिबल्किंग सर्जरी में जिस भी पार्ट में कैंसर हुआ है उस पार्ट का पूरा सेल रिमूव किया जाता है अच्छे तरीके से ताकि वहाँ पे फिर से उस सेल के वजह से किसी और पार्ट में इफेक्ट ना करे. लिम्फ नोड रिमूवल में नोड को रिमूव कर दिया जाता है. और डिबल्किंग सर्जरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल सर्जरी होता है, मेजर सर्जरी होता है. लेकिन लिम्फ नोड सर्जरी जो होता है वो 2-3 घंटे में हो जाता है और इसमें सिर्फ नोड को रिमूव कर दिया जाता है. रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी में सर्विक रिमूव कर दिया जाता है. जो जिस भी बॉडी पार्ट में कैंसर हुआ है उस बॉडी पार्ट का जो सर्विक में जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो कैंसर हो जाता है, उस सर्विक को ही रिमूव कर दिया जाता है. प्रिवेंशन ऑफ गायनोकोलॉजिकल कैंसर,
अंडरस्टैंड योर बॉडी। सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे कि आप सभी जानते हैं गांव में ज़्यादातर अवेयरनेस इसके बारे में नहीं फैली रहती है। लेडीज़ ज़्यादातर इस बात को ध्यान नहीं देते कि उनको क्या प्रॉब्लम, अगर इंटरनली भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो जल्दी उस बात पर ध्यान नहीं देती हैं और सोचती है कि थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वही छोटी छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी बीमारी में बदल जाती है किसी को पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले अपने बॉडी को समझना चाहिए। रूटीन पैप टेस्ट लेना चाहिए, डॉक्टर से मीट करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मीट करना चाहिए। अगर कुछ भी पीरियड प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, अचानक से अगर पीरियड नहीं हो रहा है टाइम पे और स्वेलन हो गया है एब्डोमन में या फिर ओवरवेट हो गया है, तो पैप टेस्ट हमें रेगुलर कराना चाहिए। मंथली या फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मंथली या फिर ईयरली चेकअप जरूर से कराना चाहिए। चूज हेल्दी लाइफ स्टाइल। अभी के बिजी लाइफ में ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते कि हमें अपने बॉडी का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो लाइफ कैसे रहेगी। मान लीजिए पैसे कमा लिए, बहुत अमीर हो गए, फिर भी अगर हेल्थ नहीं है तो जीने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अपने बॉडी को समझना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल चूज करना चाहिए और हेल्दी भोजन हेल्दी डाइट लेना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ज़्यादातर रिच विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, हर एक चीज़ लेना चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Thank you all for giving you major time for me, and have a safe and healthy life for you all.